Hello students, how are you all? I'm hoping that you all are safe and fine at home and doing well. So yes, our chapter 10, respiration in organism is going on, and in this chapter we already discussed about some of the topics like types of respiration, aerobic and anaerobic respiration, like anaerobic respiration in muscles. Generally we are breathing through the aerobic respiration, but how the anaerobic respiration happens, it takes place in the muscles during special cases. Then we discussed about the respiration in different organisms. What are the respiratory organs and how they breathe in or breathe out. So all these things we have already discussed in our previous topics. If still any doubt is there, if you are having any of the doubt, then you can share it with me on my WhatsApp number. Okay? Now our today's topic is how do we breathe? हम कैसे सांस लेते हैं? So yes, it is very common mechanism. This chapter is very common because it relates with ourselves. कि हमारे साथ relate करता है and जनरली हमें बहुत सारी चीजें अपने बारे में पता होती हैं एंड वी आर क्यूरियस टू नो रेस्ट ऑफ द थिंग्स. ठीक है, बिकॉज इट रिलेट्स विद आवर सेल्फ. सो दीज काइंड ऑफ चैप्टर्स आर माई पर्सनल फेवरेट्स जो हमसे रिलेट करते हैं, लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, बोन्स. ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं, आई पर्सनली लाइक ऑल दोज चैप्टर्स बिकॉज दे एक्चुअली टेल अस कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड एंड आउटसाइड अस, कि हाउ वी आर एबल टू सर्वाइव. हमारे अंदर क्या होता है, हमारे आसपास क्या है, हाउ वी कैन रिलेट आवर सेल्फ विद द आउटसाइड वर्ल्ड. सो ये सारी चीजें हमें बताता है. सो आई रियली इंजॉइंग और रीडिंग ऑल दिस चैप्टर्स एंड मतलब ये क्या होता है कि ये सब चैप्टर्स को याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती. अगर एक बार हमने पढ़ लिया और अच्छे से समझ लिया है, देन ऑटोमेटिकली वी विल गेट टू नो कि व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, बिकॉज हमारे साथ ये बहुत सालों से होता आ रहा है. ठीक है, हमें सिर्फ नेम्स नहीं पता और एक्चुअली प्रोसीजर नहीं पता है, तो वो हमें इन चैप्टर्स के थ्रू पता लग जाता है. सो यस, लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ डू वी ब्रीथ. सो यस, हाउ डू वी ब्रीथ. For this, actually, I made one diagram here. Is it very much clear to you? So yes, it consists of the respiratory organ, that is lungs of our body, along with all the passage which is present inside the body for the air to move. So yes, this is complete passage. So now we are going to start it one by one. This is our nose. Okay? This we all know that, and it is having two openings in the front, that is known as nostrils. So yes, this is nose and this is nostrils. So yes, nostril is having one complete passage out at the back. ठीक है, इसके पीछे एक पूरा पैसेज होता है जिसको हम बोलते हैं नजल पैसेज या फिर नजल कैविटी. ओके, व्हाट इज हैपनिंग? The air which is present outside the body, it is at the room temperature. बाहर ठंड है तो ठंडी होगी, बाहर गर्मी है तो गर्म होगी. So yes, and as we take it oxygen rich air, then it will soon changes at the room temperature or as soon changes it at the body's temperature. हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो हमारी एयर जो हम अंदर ले रहे हैं, इट बिकम्स वार्म एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड. Then what is happening? The air which we are taking in it not just carrying the oxygen, it also having dust particle, dirt particle along with it. तो हमारे नजल कैविटी में क्या होता है, म्यूकस की लाइनिंग होती है which secretes mucus. Okay, म्यूकस की लाइनिंग है which secretes mucus. तो what is the function of this mucus? Why it gets secreted? ये जो म्यूकस है, म्यूकस लाइनिंग जो secrete करती है, what is the functions of this mucus? First one is it warms the air. ठीक है, या इट मॉइस्चर्स द एयर. ये क्या करता है, उस एयर के अंदर मॉइस्ट एयर उसको चेंज कर देता है, वार्म प्लस मॉइस्ट एयर हो जाती है. एंड सेकेंड थिंग, हमारे जो हेयर प्रेजेंट है नोज के कैविटी में, नजल कैविटी में, उसके साथ ये जो म्यूकस है, वो जो डस्ट और डर्ट पार्टिकल है उसको एंट्रैप कर लेता है. ठीक है, जिसके बाद जो हमारी एयर अब फर्दर अंदर जाएगी, इट इज कंप्लीटली क्लीन, विदाउट डस्ट डर्ट, कुछ भी नहीं होगा उसमें. ठीक है, सो म्यूकस के दो फंक्शन है. फर्स्ट वन इज टू मॉइस्चर द एयर, सेकेंड वन इज टू क्लीन द एयर एंड एंट्रैप दिस डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स. ठीक है, नाउ हमारी जो एयर बची वो कैसी है, क्लीन है, वार्म है एंड मॉइस्चर है. तो ये जो एयर है जो हमारी नजल कैविटी में अब वार्म, मॉइस्चर और वार्म हो चुकी है, दिस विल एंटर इनटू द larynx and then trachea. Larynx is the voice box जो यहाँ पर present है.
है ना, वॉइस बॉक्स जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। बॉयज के अंदर ये थोड़ा प्रोमिनेंट होता है, उनकी आवाज थोड़ी भारी होती है। गर्ल्स के अंदर ये थोड़ा सा ठीक होता है बिकॉज उनकी आवाज थोड़ी पतली होती है, ठीक है। सो ये थ्रू दिस लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स इट एंटर्स इनटू द ट्रैकिया। ट्रैकिया आर द रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दिस एरिया। तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। एक्चुअली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ट्रैकिया और रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, और क्या होता है इसका? इट प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ द विंड पाइप। अगर हमारी विंड पाइप बंद हो गई, किसी भी वजह से उसमें कोलैप्स आ गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, किसी भी वजह से वो बंद हो गई, हमें सांस नहीं आया तो हम मर जाएंगे। सो बेसिकली क्या होता है, दिस ट्रैकिया विल प्रिवेंट दिस विंड पाइप फ्रॉम कोलैप्सिंग, उसको कोलैप्स नहीं होने देता। देन क्या होता है कि एज इट एंटर्स इनटू द लंग्स, दिस इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जैसे ही वो लंग्स में एंटर करने लगता है उससे पहले द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। एक मैंने पूरा इलेबोरेट करके दिखाया, दूसरा मैंने वेकेंट दिखाया, सेम ऐसा ही होता है, ठीक है। दिस यू कैन मेक बाय योरसेल्फ आल्सो। सो यस, दिस ट्रैकिया विल डिवाइड इनटू टू। इनको क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे ब्रोंकियाई। यस, ब्रोंकियाई फॉर टू एंड ब्रोंकियोस फॉर वन, ब्रोंकस फॉर वन एंड ब्रोंकियाई फॉर टू। मतलब सिंगुलर इसका होता है ब्रोंकस, ठीक है। तो वो ब्रोंकियाई में टूट जाता है दो, और ब्रोंकियाई आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं इनटू द ब्रोंकियोल, और सिंगुलर इज ब्रोंकियोलस, ठीक है। वो ब्रोंकियोल में बहुत सारे ब्रोंकियोल्स होते हैं अंदर, एंड ब्रोंकियोल विल अल्टीमेटली उसका जो एंड होता है दैट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, थिन स्मॉल एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं एल्वुलाई। एक को हम बोलते हैं एल्वियोलस, और जब सारे के सारे हैं उसको हम बोलते हैं एल्वुलाई। जनरली हमारे लंग्स के अंदर अराउंड 300 मिलियन एल्वुलाई प्रेजेंट है, ठीक है। दीज एल्वुलाई हैविंग वेरी थिन वॉल एंड ब्लड रिच वॉल। इसके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो यस, एक्चुअली दिस इज द अल्टीमेट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और वी कैन से this is the actual part where the exchange of gases takes place, ठीक है। तो क्या होता है, अब मैं एक बार दोबारा बताऊंगी। air enter into the body through these nostrils, passes into the nasal cavity where it get moisture, warm and clean by the mucus secreted by the mucus lining. Then it enters into the trachea, and then from trachea it divides. It enters into the bronchi, and from the bronchi it enters into the bronchioles, and then ultimately into the alveoli. And alveoli having a very thin wall and rich in blood vessels where the exchange of gases takes place. यहाँ पे ऑक्सीजन रिच जो एयर है वो एल्वुलाई से ब्लड वेसल्स में जाएगी, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके दोबारा एल्वुलाई में आएगी, एंड द सेम पैसेज विल रिपीट एंड द कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव आउट ऑफ द बॉडी. So this is the mechanism, or this is the mechanism of the breathing की how do we breathe actually, what is happening inside our body, ठीक है. One more thing, मैंने यहाँ पर छोटा सा नोच दिखाया है, हमारा जो लेफ्ट लंग है. यस, दिस इज द, ये जो मैंने लंग शो किया है ये मैंने सामने से शो किया है. ये वाला जो है दिस इज राइट लंग, ये जो है लेफ्ट लंग. जैसे हम खड़े हैं, जैसे मैं अभी दिख रही हूँ आपको, ठीक है. तो लेफ्ट लंग इज हैविंग अ स्मॉल नोच इनसाइड इट. नोच मतलब छोटा सा मुड़ा हुआ पार्ट होता है. व्हाई इट इज सो? बिकॉज हार्ट इज प्रेजेंट हियर, ठीक है. तो हार्ट के लिए वो छोटा सा नोच यहाँ पे प्रेजेंट होता है. अदरवाइज ये वाला लंग थोड़ा सा बड़ा होता है, ये थोड़ा सा छोटा होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस नोच, फॉर द प्रेजेंस ऑफ हार्ट हियर, ठीक है. सो दिस इज द पैसेज कि जैसे हम ब्रीथ करते हैं. सो आई एम होपिंग कि क्लियर हुआ होगा आपको. बट अगेन आई एम शोइंग यू वन वीडियो रिगार्डिंग दैट, सो दैट योर कंसेप्ट विल बी मोर एंड मोर क्लियर. So yes students, now I have shown one alveolus here along with the blood capillary which is present along with this alveolus. Alveolus is the singular form, alveoli is the multiple form. ठीक है, जब बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं then we are calling it as alveoli, otherwise singular is known as alveolus. So yes, जो यहाँ से बाहर से जो एयर आई है, this is rich in oxygen. This oxygen-rich air enter into the blood capillaries, and in blood, you know that hemoglobin is present, and because of this hemoglobin component, our blood is red in color. That thing you know, probably you may know. So yes, this oxygen
enters into the blood capillary through this alveoli, because this alveoli is having alveolus is having very thin membrane. So from this thin membrane it enters into the blood capillaries, and here hemoglobin is present. When this oxygen will combine with hemoglobin to form the oxyhemoglobin component, and this is the way it can travel into the blood capillaries. ऑक्सीजन अपने आप से खाली तो नहीं ट्रेवल कर सकती ना, उसको एक कोई कैरियर चाहिए, मतलब उसको जैसे हमें सामान ढोने के लिए गाड़ी या कोई सामान चाहिए, कोई ऐसा कोई व्हीकल चाहिए, तो वैसे ही ऑक्सीजन को मूव करने के लिए ब्लड के अंदर एक कोई भी व्हीकल चाहिए, दैट इज हीमोग्लोबिन कंपोनेंट. तो इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म द ऑक्सीहीमोग्लोबिन कंपोनेंट, और ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन कंपोनेंट मूव करता है अक्रॉस द ब्लड वेसल्स. ठीक है, तो वहां पर क्या करेगा, ये मूव करता करता अल्टीमेटली सेल के एंड तक जाएगा. सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, यू नो दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. तो अल्टीमेटली ये ब्लड के थ्रू सेल तक जाएगा, हर एक सेल तक. हर एक सेल ने जो रिस्पायर किया है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करेगा और ऑक्सीजन को वहां छोड़ देगा. तो फिर ये हीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपोनेंट में चेंज हो जाएगा. पूरी बॉडी से ट्रेवल करता हुआ टिश्यूज के थ्रू ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही यहाँ पर आएगा दोबारा एल्वुलाई के पास या एल्वियोलस के पास, और वहां पे CO2 डिफ्यूज कर देगा. यहाँ पे प्रोसेस हो रही है डिफ्यूजन के थ्रू, जैसे हमने कल भी किया था. डिफ्यूजन मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो दिस CO2 डिफ्यूजेस इनटू द एल्वियोलस, एंड फ्रॉम दिस एल्वियोलस अगेन इट मूव्स आउट ऑफ द बॉडी. तो यस, डिफ्यूजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली इट विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इट विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. सो दिस इज हाउ द एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द बॉडी एट द एल्वियोलाई या एल्वियोलस लेवल. तो हमने अभी अभी डिस्कस किया एल्वियोलस या एल्वियोलाई इज द अल्टीमेट पार्ट वेयर एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी. Okay, so this is the mechanism of gaseous exchange in our body. Yes students, we can perform even one activity on that कि how air enters into the lungs. जो सारा का सारा प्रोसीजर हमने अभी किया है, वी कैन मेक इट एज अ प्रोजेक्ट ऑल्सो. सो दिस इज योर टास्क. आपको एक ग्लास की बोतल या प्लास्टिक की बोतल लेनी है. प्लास्टिक की बेटर है क्योंकि उसका बेस कट जाएगा. प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट बोतल आपको लेना है. उसमें पाइप को इस तरह से अरेंज करना है जैसा हमारा ट्रैक किया है. ठीक है, पाइप को कट करके इस तरह से अरेंज करना है. एट द एंड लंग्स को आप कैसे दिखाओगे, सो यू कैन अटैच 2 बलून्स हियर. ठीक है, यहाँ पर आप बलून्स को अटैच करोगे तो जैसे ही आप ब्लो इन करोगे दीज लंग्स विल ब्लो इन, तो वो फूल जाएंगे. उसके बाद जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो वो एयर सारी ब्लो आउट हो जाएगी और वो दोबारा वैसे हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे. सो दिस एक्टिविटी यू कैन डू बाय योर सेल्फ ऑल्सो. और यस, ये आपका आज का होमवर्क है. एज टुडे इज थर्सडे, आवर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे. तो हम लोग क्या करेंगे कि आज आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है इन 3 दिनों में. दिस इज माय होमवर्क. एंड जिसका सबसे बेस्ट एक्टिविटी मुझे लगा तो ट्यूसडे की क्लास में आई विल अटैच दैट स्टूडेंट्स वीडियो इन माय वीडियो, कि कैसे वो सारी की सारी एक्टिविटी है, उसके बेसिस पे व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग एंड व्हाट वी आर कंक्लूडिंग एट द एंड. तो जिसका एक्सप्लेनेशन, जिसका प्रोजेक्ट या अल्टीमेटली ओवरऑल जिसका मुझे परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगा, तो दैट स्टूडेंट वीडियो आई विल incorporate or I will attach with my video in my Tuesday's class. So yes students, this is for today's class. Thank you so much.